to the question number 6. So the question number 6 was the major product form in the following reaction sequence is. So there was a cyclic compound, and on the arrow there was two reagents. One is commonly used as a azidization reaction. This reagent is used for azidization reaction. So what is azidization reaction? Basically, azidization reagent are those reagents which are used to form azide bonds. And the second reagent was rhodium acetate. So mainly this reagent is used for cyclopropanation type of reaction, or you can say intramolecular or intermolecular cyclopropanation reactions. So I will show how this reagent works. So let's see the solution. Dear student, now we will see the solution of question number 6 of chemistry paper of GATE 2018. So mainly in question number 6 you got two different reagent and they have asked the major product in sequence. So we will know one by one what is the function of each and every reagent. So mainly this is a azidation reagent. The function of this reagent is to form simply a azide bond. Okay, so dear student, you all know that the hydrogen present on the alpha carbon of the carbonyl are acidic in nature. So at first step, this negative charge will shift on this carbon, and now the negative charge will come on this center, and this nitrogen will abstract this proton. So our first intermediate will be a carboanion. So it will look something like this. Negative charge carbonyl plus the azidation reagent plus, now nitrogen will get a proton with SO2 bond. Now in the second step, a simple nucleophilic addition reaction takes place. This negative charge will attack this nitrogen, so this bond will shift at this side. So we will get our intermediate product, or you can say a azide product, something like this. Now the function of first reagent has been finished. Now it will look like something like this. Now the second reagent what was given in the question will come in action. So mainly they have given rhodium acetate. So always remember the function of rhodium acetate is to decompose azide compounds. So whenever you will see a rhodium acetate catalyst, always remember in mind that the function of this catalyst is to perform a decomposition reaction. And by what route? By intermolecular cyclic ring formation. It means it will, while the decomposition or after decomposition, it will give a three-member cycle. Usually it gives three-member cyclic ring. So now we will see the function of this catalyst. So as you know, this nitrogen contain a lone pair, so it will attack to this center, so this bond will break. So this will comes here,
and this bond will break. So what we will get? We will get something like this. There will be a ring formation. This nitrogen will attain a positive charge. Here you will get this one branch and a carbonyl compound. Along with this will comes out as nitrogen gas, and this end will look something like this. So this negative charge will abstract this proton because this nitrogen has positive charge, and always remember, if a nitrogen contain a positive charge, it is highly unstable. So this negative charge will abstract this proton, or it will simply take out the proton. So we will expect our product something like this. Sorry. Along with first byproduct will be nitrogen gas, and second one will, as expected, this compound. So this is the major product we will get, and we can say that from this we will find that option number A is the correct option. So what are the point you should remember, or what are the tips you should remember for your future exam? Whenever you see a azidation reagent or this type of reagent, you will always think or always expect azide bond formation. And whenever you see a rhodium base acetate base catalyst, always remember that it will act as a decomposition catalyst. So rhodium acetate will always act as a catalyst for azide decomposition. And if anybody asks in future by what route they perform decomposition, so always remember they will follow intramolecular cyclic ring formation while decomposition. So they will form a cyclic ring after the decomposition reaction complete. So this is the major product of question number 6. Question number 7. The spherical harmonic function is this: with appropriate value of L and M is an eigenfunction of L cap square x plus L cap square y operator. The corresponding eigenvalue is. तो बेसिकली यहाँ पर हमको आइजन वैल्यू को निकालने के लिए बोला गया है. तो चलिए आइए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक जानते हैं. That's it. मैं सॉल्यूशन एक रिकॉर्ड कर रहा हूँ. नाउ कमिंग टू द सॉल्यूशन. तो आप लोगों को पता ही है एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, Lx प्लस Ly प्लस Lz. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिकली मैं 3 डिफरेंट फॉर्म्स को यूज़ करूँगा. दूसरा फॉर्म होता है L इज इक्वल टू रूट अंडर LL प्लस 1 इंटू रिड्यूस प्लैंक कॉन्स्टेंट. और थर्ड जो फॉर्मूला है दैट इज LH इज इक्वल टू M इंटू रिड्यूस प्लैंक कॉन्स्टेंट. तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को स्क्वायर कर दिया, दैट इज L स्क्वायर इज इक्वल टू LX स्क्वायर प्लस Ly स्क्वायर प्लस Lz स्क्वायर.
अब मैं क्या करूँगा, जो इक्वेशन नंबर 2 है मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करूँगा। तो आपको क्या मिलेगा, आपको कुछ इस तरह का फॉर्म मिलेगा। तो अब क्या करना है कि जो LZ का आपका रिप्रेजेंटेशन है उसको मास के टर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो आपको जो नेक्स्ट इक्वेशन मिलेगा दैट इज LL+1 इंटू स्क्वायर ऑफ रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट, और इधर आपको क्या मिल जाएगा, m के टर्म में एक ये मिल जाएगा। अब सिंपली क्या करना है, मास वाले टर्म को इधर ले आएंगे तो आपको Lx² + Ly² का वैल्यू मिल जाएगा, और दैट इज द करस्पॉन्डिंग आइजन वैल्यू फंक्शन, दैट इज दिस। एंड यहाँ से आपको क्या पता चलता है कि आपका ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अब आप अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, गेट 2018 के केमिस्ट्री सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 8। तो मेनली यह क्वांटम केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता है कि कंसीडर द ऑपरेटर ए कैप प्लस, उसका एक वैल्यू दिया हुआ है, और ए कैप माइनस का वैल्यू दिया है एक ऑपरेटर, जहाँ पर एक्स जो है और पी एक्स जो है पोजीशन और लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर्स हैं। तो बोलता है कि इसका कम्यूटेटर फाइंड आउट कीजिए, या इसका कम्यूटेटर जो होगा इसका वैल्यू क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सो मेनली इसमें हमें कम्यूटेटर, इसका वैल्यू निकालना है कम्यूटेटर का, ए प्लस कैप ए माइनस कैप का वैल्यू निकालना है। तो चलिए इसको हम लोग कम्यूटेट करते हैं एक डमी फंक्शन पे साई पे। तो इसका फॉर्मूला होता है ए कैप प्लस डॉट ए माइनस कैप माइनस ए माइनस कैप डॉट ए प्लस कैप, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब आपका ए प्लस कैप और ए माइनस कैप का वैल्यू हमें ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट इज 1√2 एक्स कैप प्लस आई पी एक्स कैप, और ए माइनस का भी वैल्यू दिया हुआ है दैट इज 1/√x कैप माइनस आई पी एक्स कैप। अब इस दोनों वैल्यू को इस फॉर्मूला पे पुट कर दीजिए, दैट इज, तो ए प्लस कैप का वैल्यू कितना है, चलिए पुट करते हैं 1/√2 एक्स कैप प्लस आई पी कैप एक्स डॉट, अब ए माइनस का वैल्यू हमको इतना दिया कैप का, तो चलिए इसको भी पुट करते हैं 1/√2 एक्स करके लिख देना है, दैट इज, क्योंकि ए माइनस डॉट ए प्लस है तो उल्टा करना है, दैट इज 1/√2 एक्स आई पी एक्स डॉट पी एक्स कैप, ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब चलिए दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस साइन है तो जस्ट इसका रिवर्स लिख देना है, दैट इज आई पी एक्स कैप डॉट एक्स प्लस आई स्क्वायर पी एक्स कैप, फाइनली, और सॉरी इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो ये √2 नहीं होगा, 2 होगा, सॉरी यहाँ √2, हमने 1/2 को बाहर ले आना है और इस नेगेटिव चार्ज को अंदर ले जाना है, दैट इज ऐसा कुछ इक्वेशन होगा। माइनस माइनस प्लस फिर माइनस आई स्क्वायर पी एक्स, हाँ कि ना। तो गौर कीजिए आपका स्क्वायर वाला टर्म कट रहा है, यहाँ भी स्क्वायर होगा, कहाँ की तो माइनस होगा, माइनस माइनस और प्लस प्लस, हाँ कि ना। तो चलिए क्या हो गया 1/2 आई पी एक्स कैप, हाँ कि ना, 2 बाहर ले लिया, दैट इज कैंसिल आउट हो गया। आपको क्या फॉर्मूला मिला, आई पी एक्स डॉट एक्स नॉट माइनस एक्स कैप डॉट आई पी एक्स, हाँ कि ना।
तो x क्या है, एक मोमेंटम वेक्टर है, तो इसका वैल्यू आपको पता है, इसका वैल्यू क्या होता है, x पोजीशन का, और px का क्या होता है, इसका होता है -i रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट डो बाई डो एक्स, इसका वैल्यू होता है, इसको याद रखना है। तो इसको यहाँ पर पुट कर देंगे, तो इसको जैसे ही इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू मिलेगा i माइनस आई दैट इज रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट। इसको सेम इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा तो आपको लास्ट में वैल्यू आएगा ये, तो क्या मिला आई स्क्वायर दिस, और इसको आप आई स्क्वायर का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो -1 और पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या मिला आंसर, एच रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट मिला या एच बार मिला। ऑप्शन सी इज करेक्ट। हेलो दोस्तों, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ गेट क्वेश्चन पेपर 2018 केमिस्ट्री सेक्शन। द क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, द टेम्परेचर डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पोटेंशियल E एट कांस्टेंट प्रेशर del E by del T एट कांस्टेंट इज गिवन बाय। तो पूछ रहा था कि एट कांस्टेंट प्रेशर सेल पोटेंशियल किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का क्या होगा, या चेंज इन इलेक्ट्रो पोटेंशियल विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ था और इसमें आपको सही वैल्यू चुनना था। तो आइए जानते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो आपको डेल जी का एक कॉमन फार्मूला याद ही होगा, डेल जी इज इक्वल टू माइनस NFE। तो इस फार्मूला का मैं यहाँ पर उपयोग लूँगा। नाउ आपको पता है जो गिव्स फ्री एनर्जी है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो नाउ पार्शियली डिफरेंशिएटिंग जी विथ रिस्पेक्ट टू T एंड P एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, हमको इक्वेशन नंबर 2 मिलेगा। और आपको ये इक्वेशन भी कॉमनली नाम याद होगा, डेल जी इज इक्वल टू V डेल P माइनस S डेल T। सो नाउ मैं इन दोनों को कंपेयर करूँगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि डेल टी और डेल टी को जब कंपेयर करेंगे तो आपको एक यहाँ से क्या वैल्यू मिलेगा, डेल जी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू माइनस S। ठीक है, दोनों तरफ मैं डेल्टा से मल्टीप्लाई करूंगा, दैट इज डी डेल जी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू माइनस S। और ये जो डेल जी है यहाँ पर आप इक्वेशन नंबर 1 का वैल्यू पुट कर सकते हैं, दैट इज डेल जी इज इक्वल टू माइनस NF। तो मैंने पुट कर दिया, दैट इज माइनस NF डेल ई बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू माइनस डेल S। माइनस माइनस कैंसिल, तो आपको क्या मिल गया, डेल ई बाई डेल टी, इस NF को मैं इधर ले गया, दैट इज डेल S बाई NF। तो आपको क्या फॉर्मूला मिला, डेल ई बाई डेल टी बाई एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल। तो इस हिसाब से आपका कौन सा इक्वेशन आंसर सही होगा, दैट इज ऑप्शन B। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये था कि फॉर एन आयनिक मिसल फॉर्मिंग सर्फेक्टेंट नियर इट्स क्रिटिकल कंसंट्रेशन द डिपेंडेंस ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एंड सरफेस टेंशन ऑन सर्फेक्टेंट कंसंट्रेशन इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय। तो ये एक्चुअली पूछा था कि ये बताओ कि मोलर कंडक्टिविटी और सरफेस टेंशन का क्या रिलेशन होगा ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सर्फेक्टेंट पे। मान लीजिए इस पॉइंट पे हमारा कंसंट्रेशन 0 है, इस पॉइंट पे हमारा कंसंट्रेशन 0 है। इसका मतलब क्या है कि ये कम्प्लीटली डाइल्यूट है, या बोल सकते हैं यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन्फिनाइटली डाइल्यूट है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो कंडक्टिविटी होगा वो क्या होगा, वो इसको कहेंगे, दैट इज इस पॉइंट पे मेरा डेल एम इज इक्वल टू ये हो जाएगा, हाँ कि ना। अगर मान लीजिए इस पॉइंट पे C है तो ऑब्वियस है यहाँ पर जो मेरा कंडक्टिविटी मिलेगा वो क्या होगा, इन्फिनाइट डाइल्यूशन से हर समय कम रहेगा। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे मेरा कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बढ़ते जाएगा कंडक्टिविटी घटती जाएगा।
दूसरा पार्ट है कि सरफेस टेंशन पे क्या असर होगा। हर समय याद रखिए कि सरफेस टेंशन जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सर्फेक्टेंट का कंसंट्रेशन से। तो ऑब्वियस है जैसे जैसे सर्फेक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा उसका सरफेस टेंशन क्या होगा, घटेगा। तो देखिए ये ग्राफ, तो इस हिसाब से मेरा ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 11, according to Eyring transition state theory for a bimolecular reaction the activated complex has। तो मेनली ये क्वेश्चन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी से है और यहाँ पर आपको बेसिकली पूछा गया है कि इसमें से कौन सा पॉइंट सही है रिगार्डिंग एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो मेनली इसमें ऑप्शन नंबर डी सही पॉइंट है, क्योंकि हर समय याद क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी करेक्ट है। It was based on Wade's rule, the structure type of B5H8- is. The options are Clozo, Nido, Arcano and Hypho. So on the basis of Wade's rule, we have to identify the structure of B5H8-. So let's come and we will see the proper trick or explanation for this type of question. To solve this type of question, you have to basically remember the general formulas for every type of or different type of boranes. So coming to the solution, the general formula provide the general formula for all the different 5 type of boranes. So general formula, once you remember all this type of the general formula of all the boranes, so it will become more easier for you all to solve such question. So general formula of clozoborane is Bn H2n Hn plus 2. The second case is Nido. Its formula is Bn Hn plus 4. Third one is Arcanoboranes. So its general formula is Bn Hn plus 6. Then comes Hypo. So Bn Hn plus 8. And the last one is Clado, that is Bn Hn plus 10. Sometimes some question are give example of carbonaboranes. So at that time always remember BH is isoelectronic with carbon. One BH is isoelectronic for one BH is isoelectronic with one carbon atom. So by this, remembering this, you can also use this formula to identify the structure of carbanoboranes. Okay. So the question was, what is the structure of what is the structure of B5H8 minus? So to solve this question, you can think like that: if we remove one proton from B5H9, it will give B5H8 minus. Okay, so if we add one proton in B5H8 minus, then what will the borane? B5H9. So basically they are not, they have given
you the not B5H8 minus, but they are asking what is the structure of B5H9, because if you remove one proton from B5H9 you will get B5H8 minus. So basically both the boranes have same structure. So here the N value is 5. So if we put this value in here, nidoborane case, that is Bn Hn plus 4, that is B5H9. So it is matching with this structure. So we can say the structure of B5H8 is similar to B5H9, that is it is a nidoborane. So the right answer for this question is option B. The option B is correct. No, I'm not your servant, bro. Now coming to question number 13, the coordination geometry around the copper ion of plastocyanine in oxidized and reduced form. तो यहाँ पर जो क्वेश्चन ये पूछ रहा है, सिंपल पूछ रहा है, जो सेंट्रल मेटल आयन है प्लास्टोसाइनिन का, जो एक कॉपर बेस्ड प्रोटीन है, वहाँ पर कॉपर का ज्योमेट्री पूछ रहा है। जब कॉपर ऑक्सीडाइज स्टेट में होगा जैसे +1 में, और जब रिड्यूस स्टेट में होगा +2 में, तो दोनों में जो कॉपर का ज्योमेट्री पूछ रहा है प्रोटीन के अंदर। तो ये एक जस्ट मेमोराइज करने वाला क्वेश्चन था। तो इसका आंसर होता है डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, और दोनों केस में जो ज्योमेट्री है कॉपर को टेट्राहेड्रल ही रहता है, लेकिन आइडियल ना होकर डिस्टॉर्टेड रहता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, द वाटर एक्सचेंज रेट्स फॉर द कॉम्प्लेक्स आयन फॉलो द ऑर्डर। तो इसमें ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि वाटर एक्सचेंज रेट का ऑर्डर बताइए। तो now coming to the question number 14, the water exchange rate for the complex ions follow the orders। तो इसमें हमको डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस दिया गया है और उसमें एक्सचेंज रेट का ऑर्डर पूछा है, मतलब कि ज़्यादा से कम के क्रम में, मतलब किस कॉम्प्लेक्स में सबसे ज़्यादा वाटर एक्सचेंज रिएक्शन होगा और किस कॉम्प्लेक्स में सबसे कम वाटर एक्सचेंज रिएक्शन होगा। तो आइए जानते हैं इसका सॉल्यूशन। नाउ कमिंग टू द सॉल्यूशन। तो जब भी आप किसी क्वेश्चन का वाटर एक्सचेंज रिएक्शन रेट को निकालेंगे तो आपको इन पॉइंट्स पे ध्यान देना है। क्या क्या पॉइंट पे? जो पहला पॉइंट है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। हर समय याद रखिए कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू वाटर एक्सचेंज होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आपका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा मेटल का, उसका वाटर एक्सचेंज रिएक्शन घटेगा। तो इस प्रिंसिपल को लगा के हम लोग पता करते हैं, या हम लोग ऑप्शन को सेलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ कोबाल्ट 2+ में है, वेनाइडियम भी 2+ में है, क्रोमियम जो है 3+ में। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रोमियम का जो कॉम्प्लेक्स है उसका वाटर एक्सचेंज रिएक्शन सबसे कम होगा, हाँ कि ना? तो इस हिसाब से आप वो ऑप्शन खोज लीजिए जिसमें क्रोमियम सबसे लास्ट में है, तो दैट इज ए और डी। तो इस हिसाब से हमको पता चल गया कि ये ऑप्शन दोनों तो गलत है, ठीक है। अब जब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2+ का कॉम्प्लेक्स है, तो मतलब पहला प्रिंसिपल से अब डिसाइड हम नहीं कर पा रहे हैं कि ए सही है या बी। नाउ कमिंग टू आयनिक रेडियस। हर समय याद रखिए आयनिक रेडियस से वाटर एक्सचेंज रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि आयनिक रेडियस जैसे जैसे घटेगा वाटर एक्सचेंज रिएक्शन घटती जाएगा, आयनिक रेडियस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे वाटर एक्सचेंज रिएक्शन बढ़ती जाएगा। तीसरा पॉइंट आता है मेटल लिगेंड बॉन्ड।
स्ट्रेंथ, मतलब कि मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ कहता है। हर समय याद रखिए मेटल लिगेंड बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाटर एक्सचेंज। इसका मतलब ये है कि मेटल और लिगेंड के बीच में जितना मजबूत बॉन्ड होगा वाटर एक्सचेंज रिएक्शन उतना कम होगा। इसका मतलब बॉन्ड आसानी से टूटेगा नहीं, तो इसलिए वाटर एक्सचेंज स्लो हो जाएगा। मेटल लिगेंड बॉन्ड जितना कमजोर होगा वाटर एक्सचेंज रिएक्शन उतना फास्ट होगा। इसका मैं एक एग्जांपल भी देना चाहता हूँ। हर समय याद रखिएगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स में या डाउन द ग्रुप आप जैसे जैसे जाइएगा मेटल लिगेंड बॉन्ड उतना स्ट्रांग होते जाता है। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आयरन, रुथेनियम 2+ और ऑस्मियम 2+। तो हर समय याद रखिएगा डाउन द ग्रुप आप जैसे जैसे जाइएगा मेटल लिगेंड बॉन्ड उतना स्ट्रांग होते जाएगा। तो ऑब्वियस है मेटल स्ट्रांग होगा तो वाटर एक्सचेंज रिएक्शन क्या होगा, घट जाएगा। तो ये इस तरह से याद रखिएगा कि डाउन द ग्रुप मेटल लिगेंड बॉन्ड स्ट्रांग होता है तो वाटर एक्सचेंज रिएक्शन घट जाता है। तो इसका ऑर्डर आप इस तरह से याद करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपको फ्यूचर में गेट में या किसी और नेट में भी दिख सकता है। तो आइए अब डिसाइड करते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहले ऑप्शन से हम डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो मैं आता हूँ। यूजुअली बच्चों को आयनिक रेडियस डी ब्लॉक का याद नहीं रहता है, तो आइए मेटल बॉन्ड हर से याद रखिए। मेटल लिगेंड बॉन्ड स्ट्रेंथ जब आप देखिएगा तो कोबाल्ट का और वेनेडियम में कोबाल्ट का जो मेटल लिगेंड बॉन्ड है वो ज़्यादा वीक होता है एज कम्पेयर टू वेनेडियम। तो इस हिसाब से कोबाल्ट का अगर बॉन्ड वीक है इसका मतलब क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शन, तो उसका वाटर एक्सचेंज रिएक्शन फास्ट होगा। वेनेडियम का मेटल लिगेंड बॉन्ड स्ट्रांग होगा, उसका वाटर एक्सचेंज रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स का वाटर एक्सचेंज रिएक्शन फास्टर होगा वेनेडियम से। तो इस हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही है और ए गलत है। क्वेश्चन नंबर 15, द लोएस्ट एनर्जी डी ट्रांजिशन ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस फॉलो द ऑर्डर। तो क्वेश्चन नंबर 15 कुछ इस तरह से आया था कि आपको 3 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया हुआ था और आपको डी ट्रांजिशन का ऑर्डर बताना था। किस क्रम में, लोएस्ट से हाईएस्ट क्रम में। मतलब कि जो सबसे लोएस्ट एनर्जी का ट्रांजिशन होगा उसको सबसे पहले लिखना है और जो हाईएस्ट एनर्जी का क्रम होगा उसको सबसे लास्ट में लिखना है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो जब भी आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन गिरे ऑर्डर का, तो हर समय देखिए इसमें कॉमन क्या है और ऑप्शन में अनकॉमन क्या है। तो यहाँ पर कॉमन हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भी कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर क्रोमियम सेंट्रल मेटल एटम है और बकायदा सब क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, हाँ कि ना। तो अनकॉमन क्या है, अनकॉमन है यहाँ का हर चीज़ का लिगेंड। देखिए एक वाटर है, एक्वा है, अमोनिया है और CN है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन जो है आपको सीधा सीधी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आ गया है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को याद करने के लिए आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करना पड़ेगा। और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमको क्या बताता है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमको ये बताता है कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और कौन सा लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड है। तो आप जब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद रखेंगे तो आपको वहाँ से पता चलेगा CN जो है और अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आता है और वाटर जो है वीक फील्ड लिगेंड। तो इस सिंपल सा कंसेप्ट है कि आपका लिगेंड जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, जितना ज़्यादा उसका फील्ड स्ट्रेंथ होगा, उसका डी ट्रांजिशन का जो एनर्जी गैप होगा उतना ज़्यादा होगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, हायर द फील्ड स्ट्रेंथ हायर विल बी द एनर्जी ऑफ डी ट्रांजिशन। तो इस कंसेप्ट को मैं यूज़ करूँगा और क्वेश्चन आपका 2 मिनट चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। तो फील्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमको क्या मिला कि CN का फील्ड स्ट्रेंथ फील्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद अमोनिया, उसके बाद वाटर। तो इस हिसाब से सॉल्व कीजिए। इसका मतलब CN वाला जो कॉम्प्लेक्स होगा उसका डी ट्रांजिशन का सबसे ज़्यादा एनर्जी होगा और जो वाटर वाला कॉम्प्लेक्स होगा उसका सबसे कम होगा। तो इसमें ऑप्शन आप खोज लीजिए। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, तो ऑब्वियस है CN का सबसे ज़्यादा एनर्जी डी ट्रांजिशन यहाँ है, तो ये वाला ऑप्शन सबसे सही। उसके बाद अमोनिया, फिर तो ऑब्वियस है इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन ए। The symmetry levels of valence p orbital of a metal ions in a octahedral field is।
तो क्वेश्चन ये था कि आपको सिमेट्री लेवल बताना था पी ऑर्बिटल का ऑफ अ मेटल आयन जो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में है। तो इस तरह के क्वेश्चन को याद करने के लिए आपको मीन्स ये तीनों चीज़ याद रखना पड़ेगा, या ये सिमेट्री लेवल आपको याद रखना पड़ेगा। हर समय याद रखिए एस ऑर्बिटल जो होता है वो एक सिंगल ऑर्बिटल से बना होता है, तो उसको हम लोग A1G से रिप्रेजेंट करते हैं। पी ऑर्बिटल जो होता है वो 3 डिफरेंट ऑर्बिटल से बनाता है, दैट इज PX, PY, PZ से बनाता है, या बोल सकते हैं आप वो ट्रिपली डिजेनरेटेड होता है, इसीलिए उसको हम लोग T1U से रिप्रेजेंट करते हैं। और डी ऑर्बिटल आपको पता है 2 पार्ट में बढ़ जाता है, दैट इज EG और T2G। T2G में आपका 3 ऑर्बिटल होता है, दैट इज DXY, DYZ और DZX, और EG में DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको पी ऑर्बिटल के बारे में पूछा गया था कि पी ऑर्बिटल का सिमेट्री लेवल बताइए, तो इस हिसाब से आपको पता ही है कि पी ऑर्बिटल ट्रिपली डिजेनरेटेड होता है, तो उसका आंसर क्या होगा T1U, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। द बॉन्ड एंगल बिटवीन titanium carbon carbon in a crystal structure of this complex is severely distorted by। तो ये क्वेश्चन ये बोलता है कि इस कॉम्प्लेक्स में जो आप ये बॉन्ड देख रहे हैं या ये बॉन्ड डिस्टॉर्शन देख रहे हैं, ये क्यों हो रहा है, इसका रीज़न बताना है। तो आपको 4 ऑप्शंस दिया हुआ था और उसमें आपको राइट आंसर खोजना था। तो इसको सॉल्व करने का तरीका मैं बताता हूँ, या ये 4 इसके रियल ऑप्शन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो मेनली ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, तो आपको जो फर्स्ट ऑप्शन दिया था वो था हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड वहीं बनता है जहाँ हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, या बोल सकते हैं जहाँ पर एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का टर्मोलॉजी आता है, वहाँ हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन देखते हैं। तो ये कंसेप्ट नहीं हो सकता। अब आइए एगोस्टिक इंटरेक्शन। तो मेनली ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, तो एगोस्टिक इंटरेक्शन मेनली ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में ही होता है। तो अगर बोला जाए तो ऑप्शन बी ही इसका करेक्ट आंसर है। तो अब मैं समझाऊंगा व्हाट इज एगोस्टिक इंटरेक्शन क्या होता है। तो एगोस्टिक इंटरेक्शन मेनली उस तरह के कंपाउंड में होता है जहाँ पर ट्रांजिशन मेटल के पास CH बॉन्डिंग होता है, या कह सकते हैं पहला प्रिंसिपल ये बोल सकते हैं एगोस्टिक इंटरेक्शन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में होता है। तो क्या ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है? हाँ है। क्या इसके पास मेटल ट्रांजिशन मेटल के साथ CH बॉन्ड है? हाँ है, ये भी है। तो इसका ऑप्शन एगोस्टिक इंटरेक्शन होता है। इस तरह के बॉन्ड को हम लोग टू इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्डिंग भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। द क्वेश्चन नंबर 18 वाज द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज रिप्रेजेंटेड इन द टेम्परेचर रेंज ऑफ 298 Kelvin to 400 Kelvin by an empirical relation CPM 14 plus BT joule per Kelvin per mole, where B is a constant. The molar enthalpy change when the substance is heated from 300 Kelvin to 350 Kelvin is 2 kilojoule per mole. The value of B is। So mainly basically क्या है, आपको मोलर इंथाल्पी चेंज दिया हुआ है एक टेम्परेचर रेंज में जो 2 किलोजूल पर मोल के अराउंड है। आपको इस इक्वेशन के हेल्प से इस B का वैल्यू निकालना है। तो चलिए आइए सीखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो आइए इसका सॉल्यूशन जानते हैं। तो आपको यहाँ पर जो पहला इक्वेशन यूज़ करना है दैट इज डेल एच इज इक्वल टू CpT2 माइनस T1। तो क्वेश्चन में आपको इंथाल्पी चेंज दिया हुआ है दैट इज 2 किलो जूल पर मोल, उसको मैंने जूल में कन्वर्ट कर लिया। 2 टेम्परेचर रेंज दिया हुआ है 350 केल्विन और 300। तो आप इसको जस्ट इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो आपको Cp का वैल्यू मिल जाएगा। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, आपको एक इक्वेशन वहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज CPM 14 प्लस BT जूल पर केल्विन पर मोल। तो यहाँ से मेरे को B का वैल्यू निकालना है। तो मैंने क्या किया, इस Cp को यहाँ पर पुट कर दिया। तो आपको क्या मिला,
कुछ इस तरह से रिलेशन मिलेगा 40 माइनस 14 टी इक्वल टू बी, दैट इज 26 बाय टी इक्वल्स टू बी। तो आपको दो टेम्परेचर रेंज दिया हुआ है, दैट इज पहला दिया है 298 केल्विन और दूसरा दिया है 400 केल्विन। पुट कर दीजिए तो बी एट 298 कितना होगा 0.09 और बी एट 400 मैंने निकाला 0, तो आपका आंसर इस क्वेश्चन का कहाँ से कहाँ लाइक करेगा, बी का वैल्यू दैट इज 0.07 से 0.09। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ओजोन, द एडजॉर्प्शन ऑफ ओजोन ऑन ग्रेफाइट सरफेस इज फुल्ली डिसोसिएटिव इन नेचर। बोल रहा है कि जब हम लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ओजोन ले रहे हैं तो पाया गया कि एडजॉर्प्शन ऑफ ओजोन जो होता है ग्रेफाइट सरफेस वो डिसोसिएटिव एडजॉर्प्टिव फुल्ली डिसोसिएटिव होता है नेचर में, एंड फॉलो लैंगमुयर isotherm. Under this condition, if the dependence on surface coverage of graphite theta on partial pressure of ozone is given by ये इक्वेशन, तो उन्होंने दिया है कि जो सरफेस कवरेज होगा ग्रेफाइट का थीटा, जो थीटा से रिप्रेजेंट वो, और पार्शियल प्रेशर में एक रिलेशन दे दिया गया है आपको ये। तो बोल रहा है कि एक्स का वैल्यू बताइए। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं। तो लैंगमुयर से आपको पता ही है थीटा इज इक्वल टू क्या होता है के पी 1 प्लस के पी, और चूंकि लो पार्शियल प्रेशर है तो क्या होगा थीटा इज इक्वल टू के पी। अब बकायदा आपको थीटा का वैल्यू दे ही दिया है, रिलेशन दे दिया, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर ऑफ ओजोन टू द पावर एक्स। एक्स जो होता है वो एटॉमिसिटी ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। चूंकि अगर डाई एटॉमिक होगा तो 1/2 हो जाएगा, अगर ट्राई एटॉमिक है तो 1/3 हो जाएगा। तो ओजोन किस तरह का गैस है तो आपको पता ही है, ओजोन एक ट्राई एटॉमिक गैस है, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/3, और 1/3 का वैल्यू जो होता है दैट इज 0.33। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर विल बी 0.33। क्वेश्चन नंबर 20। तो मेनली क्वेश्चन नंबर 20 एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और एक केमिकल काइनेटिक्स का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, द फॉर अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप 131 iodine, the time required for 50% dissociation is 8 days. The time required for 99.9% dissociation of 5.5 gram of 131 iodine is। तो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस तरह से आया था कि आपके पास आयोडीन का एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप था और बता रहा था कि हाफ लाइफ टाइम ऑफ दैट आइसोटोप है वो 8 दिन है। तो वो पूछ रहा था कि 99.9% डिसोसिएट करने में कितना टाइम लगेगा, यही क्वेश्चन था। तो आइए चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है तो आपको पता है कि टी हाफ का एक फार्मूला होता है, तो मैंने इसको रेट कांस्टेंट के फॉर्म में लिखा है, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू ln2 बाई टी हाफ। और आपको पता है कि जितने भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं, तो उसके लिए मैंने रेट इक्वेशन लिख दिया जो कुछ इस तरह से था, ln c फाइनल बाई इनिशियल इज इक्वल टू माइनस के टी। तो मैंने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में पुट कर दिया, तो आपको कुछ इस तरह का इक्वेशन बना। तो ये बोल रहा है कि 99% डिसइंटीग्रेट कर गया है, तो मैंने वो पुट कर दिया 100 माइनस 99.9, इनिशियल कंसंट्रेशन में 100 मान लिया है और इस फार्मूला को यहाँ पुट कर दिया है। आपको हाफ लाइफ पता है 8 डेज, आपको टी निकालना है। तो आप जब इसको सॉल्व कीजिएगा आपको इतना वैल्यू आएगा, और जब आप फाइनली जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको इस तरह आएगा 3 × 8 बाई 0.301, और जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको वैल्यूज़ मिलेगा 79.7 डेज। तो इस कंपाउंड को या इस आइसोटोप को 99.9% डिसइंटीग्रेट करने में 79.7 डेज लगेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था दैट इज 79.7 डेज आपको